Welcome to Civic Sense. Today we are going to start another lecture on comparative political analysis. So in the last 3 lectures, you have learnt about what is the meaning of comparative politics क्या है, why we compare, हम compare किसी चीज़ को क्यों करते हैं, how we compare, हम कैसे करते हैं, and along with this we try to understand some basic concepts in political science such as deductive logic reasoning, behavioralism, etc. आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये सारी इनमें से बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बार बार आएंगे, जैसे कि behavioralism, political system, structural functionalism, positivism. So far we have studied in why we compare and how we compare about few points such as we compare because we want to know context, हम किसी चीज़ के context को समझना चाहते हैं, we want to classify etc. and similarly how we compare, so उसमें हमने पढ़ा था कि we compare with the help of certain variables, a uniform unit of analysis, with observations, with hypothesis etc. ये सब हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था एंड आप उसे देख सकते। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सपैंड, हमने जो अभी तक पढ़ा है उसको आगे बढ़ाते हैं और इसमें वी विल सी दैट इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स देयर आर certain things or certain aspects which you need to understand but in a better way. For instance, take something from the last lecture, that how we compare. How to compare, right? So this we had learned in our previous lecture. So there are some other aspects of comparison, right? So usually you will see that as the comparative politics, study of comparative politics evolved over the years, जैसे जैसे 1950 के बाद comparative politics आगे बढ़ता है, so it's not a kind of homogeneous trend in the evolution of the comparative politics. So हम देखते हैं कि ओवर द ईयर्स, सो 1950s में, 1970s में, 1990s में, एंड देन आफ्टर इन द कंटेम्प्रेरी टाइम्स द नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हैव चेंज्ड, द वे, द मेथड्स, अप्रोचेस, all of these have evolved significantly over the years. For instance, 1950 में जब हम कंपेयर करते थे या फिर कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस पढ़ते थे तो उसके कुछ फीचर्स थे, और वो फीचर्स क्या थे? फीचर्स सच एज इन दोज डेकेड्स यूजुअली हम किसी एक देश को पढ़ने की कोशिश करते थे, राइट? सो हम कुछ केस पिक करते थे सच एज से इंडिया या श्रीलंका या ब्राज़ील या पाकिस्तान, एंड देन द mostly the American political scientists, they were focusing on those cases, those selected cases, और इसमें से mostly एक country, so one country study होता था, and they have a very specific gauge to it. तो इसलिए आप देखेंगे कि 1950 के दशक में comparative politics इस तरीके से इवॉल्व हुआ कि वो one case पढ़ते थे but in a very detailed manner. But the problem was that they already had certain frameworks. उनके पास कुछ frameworks already होते थे, और वो framework actually वैसे frameworks थे जिसे अमेरिका ने develop किया था to understand the world first, and secondly also to in a way to compel other countries to employ that framework. तो उस समय हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट सच एज मॉडर्नाइजेशन थियरी, ओके, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये सारे ऐसे फ्रेमवर्क्स थे
which US was in a way imposing, or US was using to study other countries. ये 1950s का था, और इस समय जो अप्रोच था दैट वाज बिहेवियरल इन नेचर, कि बिहेवियरलिज्म का एक इम्पैक्ट था. एंड देन वी सी दैट, सो फर्स्ट फेज आप समझते हैं कि ये शुरुआती फेज था, और इसमें अमेरिका का एक वर्चस्व रहा, और अमेरिका ने अपने पर्सपेक्टिव से, अपने वर्ल्ड व्यू से एक फ्रेमवर्क डेवलप किया मॉडर्नाइजेशन का या डेवलपमेंट का. और उन्होंने इस फ्रेमवर्क से जो उस समय नए देश आज़ाद हुए थे उनको समझने की कोशिश की, या फिर उन पर वो फ्रेमवर्क को थोपा. तो जब उन्हें इंडिया पढ़ना होता था तो उनके पास एक मॉडल था कि either political development or the modernization, and therefore there cannot be any other way. यही दो तरीका है या एक तरीका है, और वो तरीका वो होगा जो अमेरिका बताएगा. Okay, so this was the evolution in the first phase, and here we see that they employ behavioralism in their analysis. And then comes the second phase. In the second phase we see that all these, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को क्रिटिसाइज किया गया 1970s ऑनवर्ड्स. इस सारे कॉन्सेप्ट्स को क्रिटिसाइज किया जाता है क्रॉस द वर्ल्ड, खास करके जो साउथ एशियन स्कॉलर्स होते हैं या फिर ग्लोबल साउथ के स्कॉलर्स होते हैं. दे स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग और क्रिटिकिंग दीज स्टैंड पॉइंट्स, saying that these are not very relevant. This is in a way hegemonizing our studies, and therefore हमारा जो कल्चर है या ट्रेडिशन है या फिर उसका जो एक सोसाइटी का इम्पैक्ट होता है पॉलिटिकल सिस्टम पर, दोज आर बीइंग इग्नोर्ड, एंड देयरफॉर देयर आर लिमिटेशंस ऑफ अमेरिकन मेथड. और ये क्रिटिसिज्म से शुरू होते हैं, और इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि ये सेकेंड फेज ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इवॉल्व होता है, जब वो लोग जिसे हम डीकोलोनाइजेशन अप्रोच कहते हैं या पोस्ट कोलोनियल अप्रोच कहते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं. और इसमें था कि वी विल टेल आवर ओन स्टोरीज. ऑलराइट, सो इंडिया विल राइट कि हाउ वी आर गोइंग टू डेवलप, व्हाट आवर पॉलिटिकल सिस्टम वुड बी, ओके, व्हाट आवर ट्रेजेक्टरी ऑफ से पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया वाज. एंड सो ये सारे फ्रेमवर्क्स, ये सारे मेथड्स इवॉल्व होते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी. और ये एक लार्जर डिबेट चल रहा था सोशल साइंसेस में, और उसका एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पर एक असर पड़ता है. एंड देन द थर्ड फेज कम्स अप विथ द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एपरेटसेस. टेक्नोलॉजी जब आती है, सॉफ्टवेयर्स आते हैं, सोशल साइंसेज में प्रोग्रामिंग्स का इस्तेमाल होने लगता है. और ये ऐसा समय था जब हम लार्ज स्केल डेटा को एनालाइज कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, पहला. और दूसरा कि स्टेट, राज्य, संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस, ये सारे दोबारा एक तरीके से एक सिग्निफिकेंट हो जाते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द comparative politics. So 90s onwards we see that altogether a different kind of nature of comparative politics was seen when we see that large scale analysis of data happens, new institutionalization begins. Along with this, in a way, many of the countries which emerged after 1950s, their theories also become important, and along with this many other kinds of development happens in comparative politics, which we will look in detail. All right, so ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं. तो you can see that the evolution of comparative politics happened in generally in three phases: 1950s onwards, 70s onwards, and 1990s onwards. तो ये तो one aspect of it है. Alright, another aspect कि जब ये comparative politics में ये सब हो रहा था, so why was it happening? So remember, we have talked about something called approaches. Alright, approaches. Okay, so in the 1950s, जब first wave में we see that behavioralism plays a very important role.
राइट। एंड बिहेवियरलिज्म का मतलब अभी आपको ये समझना है कि बिहेवियरलिज्म एक इट बेसिकली मीन्स दैट द नॉलेज सिस्टम कैन ओनली बी बेस्ड ऑन observed behavior, something that you have observed, you have experimented, and you can prove it again and again, right? So an authentic knowledge system cannot be just value laden or just normative in nature. It must be factual, it must be observational in nature, it must be experimental in nature. So behavioralism एक वैसे ट्रेंड को बढ़ावा देता है जहाँ पर कि आपका नॉलेज सिस्टम जो है उसे आप बार बार प्रूव कर सके, उसे आप किसी को एक्सपेरिमेंट के थ्रू बता सके। तो ये एक लार्जर डिबेट था नॉलेज सिस्टम को लेकर, उसमें बिहेवियरलिज्म आता है और उसका इम्पैक्ट सोशल साइंसेस पर भी पड़ता है। एंड सो मेनी पीपल बिगिंस टू क्रिटिसाइज कि सोशल साइंसेस के जो नॉलेज सिस्टम्स हैं दैट इज़ नॉट ऑथेंटिक बिकॉज इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, राइट। लोग अलग अलग चीज़ें देखते हैं और अलग अलग कंक्लूजन्स निकालते हैं, बहुत ही वैल्यू लेडन है, ऑलराइट। मॉरल, इमोरल, अच्छा, खराब, झूठ, सच, दीज आर वेरी स्पेसिफिक and subjective to the people. It is not objective in a nature, and therefore our knowledge system cannot be such ambiguous, cannot be such subjective. तो and therefore behavioralism कहता है कि social sciences must adopt to those kind of knowledge system which natural sciences or sciences have. okay, science और social science में आप क्या देखते हैं? फॉर इंस्टेंस फिजिक्स में और केमिस्ट्री में ऑल ऑफ अस डू एक्सपेरिमेंट्स, हम लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। आप सब ने किया होगा कि लिटमस पेपर टेस्ट, ऑलराइट, या टाइट्रेशन, या ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, ऑल ऑफ दीज आर एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड। और ये आप दिल्ली में करें, नोएडा में करें, गाजियाबाद में करें या कानपुर में करें, हर जगह एक ही जैसा होगा। It will not change according to the context and space. So for those who support behavioralism, वो कहते हैं कि this is the authentic knowledge system, and social sciences, समाज विज्ञान को इससे कुछ सीखना चाहिए, and they should find certain theories or frameworks which encourages objectivity in the knowledge system, right? और वो कहते हैं वो आप तभी कर पाएंगे जब आप ऑब्जर्व करेंगे, आप सोसाइटी को कुछ ऐसे बिल्कुल टेंजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स यू हैव टू कम अप विथ दैट कैन नॉट और दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू चेंज in changing circumstances. So behavioralism is a kind of, so positivism से ये इवॉल्व होता है। So ये 50s में चल रहा था and that was the trend, and American academicians ने behavioralism को पूरी दुनिया में फैलाया और comparative politics पर इसका असर पड़ा, और इसलिए आप देखते हैं कि 1950 का comparative politics behavioralism से बहुत ज़्यादा influenced था, राइट। तो वो हर चीज़ को, हमारे समाज में जो भी कुछ चल रहा था वो उसे फैक्ट्स के थ्रू प्रूव करना चाहता था, राइट। आप आज भी अपने आसपास ऐसी चीज़ें देखते हैं जो बिहेवियरलिज्म से इन्फ्लुएंस्ड है। फॉर इंस्टेंस इलेक्शन स्टडीज़ के बारे में आप सब जानते होंगे, इलेक्शंस होने वाले हैं, कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी को कितनी वोट आएगी, कौन सा एज ग्रुप किस पार्टी को प्रेफर कर रहा है, ये सारी चीज़ें एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक एग्जाम्पल है बिहेवियरल थिंकिंग का कि यू हैव टू वेज। एक कि एज अ सोशल साइंटिस्ट आप समाज में घूमेंगे और आप बोल देंगे कि किसी एक पार्टी की लहर चल रही है या एक पार्टी का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, राइट। सो यू आर नॉट कमिंग अप विथ सर्टेन फैक्ट्स, यू आर जस्ट सेइंग द ट्रेंड, आप सिर्फ बता रहे हो कि समाज में ये चल रहा है। लेकिन बिहेवियरलिज्म कहता है कि आपको बताना पड़ेगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से सोचते हैं, कितने % लोग हैं जो इस तरीके से नहीं सोचते हैं। सो दे वांट सर्टेन फैक्ट्स, और इसी
इसी अप्रोच के में इलेक्शन स्टडीज़ का डेवलपमेंट होता है यूएस में, ओके, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में। इंडिया में तो ये बहुत बाद में आया, बट थिंकिंग प्रोसेस यही थी कि हमें समाज में हो रहे बदलाव को फैक्ट्स के थ्रू कैप्चर करना है, एम्पिरिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू लाना है, एम्पिरिसिज्म को बढ़ावा देना है। हम कुछ टेंजिबल नंबर्स के साथ आए, हम ये वैल्यूज़ के बारे में बात ना करें, हम ये नॉर्म्स के बारे में बात ना करें कि समाज ऐसा सोचता है, ज़्यादातर लोग ये करना चाहते हैं। नहीं, वो बोलते हैं ज़्यादातर का क्या मतलब होता है, और मोस्ट ऑफ द पीपल। सो बिहेवियरलिज्म से व्हाट इज दिस मोस्ट, कम अप विथ अ नंबर, 70% people wants or 60% wants, and it should be based on surveys, it should be based on research, it should be based on experiments, it should be based on concrete interviews, etc. right? So और ये 1950 के दशक में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ने ये अडॉप्ट किया, और बाद में इस सिलेबस में है पॉलिटिकल सिस्टम आपको पढ़ना है बाय डेविड ईस्टन, एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पढ़ना है आपको आलमंड का। सो हम जब वो पढ़ेंगे पॉलिटिकल सिस्टम, देन वी विल बी एबल टू फोकस मोर ऑन दिस अप्रोच। ऑलराइट, ईस्टन का पॉलिटिकल सिस्टम या फिर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बाय आलमंड। ऑलराइट, ये सब वी विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर्स, बट ऑल स्पेसिफिकली ईस्टर्न, ये पहले वाला जो आपने देखा कि दिस वन वाज an outcome of behavioral impact on the comparative politics, right? 70s आते आते इसके क्रिटिसिज्म शुरू हो गए, बिहेवियरल मेथड्स के क्रिटिसिज्म से शुरू हो गए, बिकॉज प्रॉब्लम ये हुआ कि साइंस एंड सोशल साइंस में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं, एंड देयरफॉर जिस तरीके से हम नॉलेज सिस्टम, अपनी ज्ञान परंपरा को साइंस में विकसित करते हैं, समाज विज्ञान में नहीं कर सकते हैं, सोशल साइंसेज में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सोशल साइंसेज में वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना दैट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी, हाउ पीपल आर थिंकिंग, व्हाट पीपल आर थिंकिंग, हाउ कम्युनिटी इज बिल्ड, what is justice, what is injustice, what is equality, what is historical injustice, what is dignity, what is self respect. हम कुछ वैल्यू सिस्टम्स को डिफाइन करना चाहते हैं, तो एंड वी कैन नॉट डू इट ओनली बेस्ड ऑन नंबर्स, वी नीड टू डेवलप एन आइडिया, वी नीड टू कम अप विथ certain norms in the society, and therefore otherwise we won't be able to create a higher self. all right, आप न्याय पढ़ते होंगे, आप समानता पढ़ते होंगे, आप स्वतंत्रता पढ़ते होंगे। देर इज नो सोसाइटी इन द वर्ल्ड जो कि पूरी तरीके से अपहोल्ड्स द वैल्यू ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी। हर समाज में कुछ ना कुछ कमियां हैं, बट स्टिल वी ट्राई टू स्टडी अ हायर कॉन्सेप्ट कि दिस इज द आइडियल फॉर्म, ये एक बहुत अच्छा फॉर्म है, और ऐसा हमें we must strive to attain that or achieve that. तो ये सोशल साइंस बताता है आपको, राइट? सो हम वी कैन नॉट डिसमिस कि दिस इज द आइडियल फॉर्म ऑफ जस्टिस, और दिस शुड बी द जस्टिस दैट अ सोसाइटी शुड अडॉप्ट। ओके, ऐसा करना चाहिए। सो वी ऑलवेज ट्राई टू अचीव द चाहिए, राइट? ऐसा होना चाहिए, ये सही है। देयरफॉर सोशल साइंसेस में यू नीड वैल्यूज, राइट? वैल्यूज के बिना आप सोशल साइंसेस को एक तरीके से खोखला कर देंगे। इट विल बी एन एम्प्टी, इट विल बी जस्ट अ हॉलो स्पेस, जहां हम जो आजकल चल रहा है, जो हमारी रियलिटी, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, बट वी वॉन्ट बी एबल टू पुट फोर्थ अ मॉडल कि चल रहा है, वो हो सकता है उसके कुछ लिमिटेशंस हों, गलत हों, लेकिन हमें एक ऐसा मॉडल तो तैयार करना चाहिए जो सही है, राइट? एंड आप देखेंगे हर एक व्यक्ति, जितने भी आप महान पुरुष कहते हैं या वो सारी महिलाएं जो महान आत्माएं हुई, सबने एक मॉडल रखा आपके सामने। ओके, वो गांधी हो, नेहरू हो, सावरकर हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, बोस हो, भगत सिंह हो,
सबका एक मॉडल था कि ये ऐसा होना चाहिए हमारा समाज, राइट, दीनदयाल उपाध्याय हो, सबका एक मॉडल था। ओके, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल इन सोशल साइंसेस। तो इसलिए बिहेवियरल मेथड का क्रिटिसिज्म होने लगा कि ये उस दिशा में आपको सोचने नहीं देता है जहां पर कि आप वैल्यू को प्रमोट कर सके। और ये क्रिटिसिज्म इसलिए हुए क्योंकि 50 के दशक में और 60 के दशक में पॉलिटिकल थियोरी में कुछ भी नया ऐड नहीं हुआ हमारा। तो इसलिए उस समय एक डिबेट चली, डिक्लाइन एंड डेथ ऑफ पॉलिटिकल थियोरी, डिक्लाइन, और आप कह सकते हैं और डेथ ऑफ पॉलिटिकल थियोरी। ओके, कुछ भी हमारे पास ऐसा आइडियल उस समय नहीं आ पा रहा था और इसलिए क्रिटिसिज्म्स हुए। तो 70 आते आते और 70 के जस्ट बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया, उसे हम नियो बिहेवियरलिज्म कहते हैं, ऑलराइट। तो उन्होंने क्या किया, और इसमें भी ये डेविड ईस्टन ने ही दिया। ईस्टन पहले बिहेवियरलिज्म की बात करते हैं 50 के दशक में, और 70 के आते आते वो कहते हैं कि मैं पूरी तरीके से सही नहीं था, और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, उसे हम नियो बिहेवियरलिज्म के नाम से जान। और ये बिहेवियरलिज्म को बदलाव करके लाया गया था। इसमें कुछ चीज़ों को नया जोड़ा गया, जैसे कि वैल्यूज़, जैसे कि नॉर्म। और फिर 90 में जाकर, 90 के दशक के आसपास हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके के अप्रोचेस, मेथड्स, ये सारे इवॉल्व होते हैं। तो नाउ आप देख रहे हैं कि एक तरीके से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बदलाव हो रहा था, और वो बदलाव आउटकम था, एक रिजल्ट था नॉलेज सिस्टम के मेथड्स में हो रहे बदलाव का, राइट। तो हम 90s में हम देखते हैं कि न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म आता है। इकोनॉमिक्स में रैशनल चॉइस थियरी का डेवलपमेंट 70s के ही से ही होना शुरू होता है, राइट। और ये एक ऐसा दौर था जब हम स्ट्रीम्स या फिर सब्जेक्ट वाइज नहीं सोच रहे थे, या फिर हम ये नहीं सोचते थे कि अगर कुछ चीज़ें सोशियोलॉजी में है, कुछ थियरी सोशियोलॉजी की हैं, तो हम उसे पॉलिटिकल साइंस में नहीं ला सकते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि जो बिहेवियरलिज्म आप पढ़ते हैं, ये नेचुरल साइंसेस से होता हुआ, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी से होता हुआ पॉलिटिकल साइंस में आता है। सिमिलरली इकोनॉमिक्स में रैशनल चॉइस थियरी आती है, जिसको कि बाद में पॉलिटिकल साइंटिस्ट लाते हैं, जिसको कि हम रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म कहते हैं। सिमिलरली आप देखोगे कि सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म आता है। तो इस तरीके से बदलाव हो रहा होता है, और इसका एक इम्पैक्ट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में देखोगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का नेचर चेंज हो रहा था, बदलाव आ रहा था। ओके, सो परेशान मत होइए, ये सारे कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है आगे जाकर। ओके, तो अगले लेक्चर्स में हम इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, या फिर उससे पहले डेविड ईस्टन का पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ेंगे डिटेल में, उनका बिहेवियरलिज्म पढ़ेंगे, नियो बिहेवियरलिज्म पढ़ेंगे, एलमंड का स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच पढ़ेंगे। उसके बाद हम इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पढ़ेंगे, जिसमें कि हम रैशनल चॉइस, सोशियोलॉजिकल, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, ऑलराइट। सो जस्ट बी काम। अभी बस हम वो सारे आइडियाज से आपको इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं। ओके, सो दिस वाज द रिजल्ट ऑफ a kind of change in the entire knowledge system of social sciences, and comparative politics was just one of the subjects which was getting influenced, all right. Political theory was another subject which was also getting influenced. Okay, so it is in this context you have to place the changing nature of comparative politics.